And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eye, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruits thereof and did eat, and gave also to her husband with her, and he did eat. और औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा था और आंखों को खुशनमा मालूम होता था और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया. And their eyes of them both were open, and they knew they were naked. And they sewed fig leaves together and made them aprons. और दोनों की आंखें खुल गईं और वो जान गए कि वो नंगे थे, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई. I'd like to stop here for a minute. Now there's got to be a beginning of everything. You had a beginning. मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ 1 मिनट के लिए रुकूं. अब हर एक चीज की इब्तदा को होना था. आपकी भी इब्तदा हुई थी. Now here's where I want to base the whole thing on. Now we talked about these last 2 meetings and to here. अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि सारी चीजों की बुनियाद कहाँ है. अब हम यहाँ इन चीजों के बारे में पिछली 2 इबादतों में बातचीत कर चुके हैं. Now this morning we went back and dramatized in the Bible that when God was making the earth, that when He was forming the gases, and then them gases become calcium and potash and different things. अब इस सुबह हम वापस जाते हैं और प्रोग्राम को तश्कील देते हैं और बाइबल में गौर करते हैं जब खुदा जमीन बना रहा था और वो गैसों की शक्ल और सूरत बना रहा था, और तब कैल्शियम, पोटाश और मुख्तलिफ चीजें बनी. He was making your body. He was laying the building out like a great master builder, like a contractor laying out his material to build a housing project. वो आपका बदन बना रहा था, वो इमारत को बना रहा था, एक अजीम ममार की मानिंद, एक ठेकेदार की मानिंद जो अपने मवाद को एक हाउसिंग मंसूबे के तामीर के लिए बाहर लाता है. He was making your body, and he had it laying there. He knew just exactly in his mind what was going to be done. वो आपका बदन बना रहा था और उसने उसे वहाँ बनाया. वो अपने दराक में जानता था कि बिल्कुल इसी तरह ठीक है, और वो जानता था कि क्या होने जा रहा है. This hand, God made that hand while He was making the world. But my spirit He made before there was a world. ये हाथ है, खुदा ने इस हाथ को बनाया इससे पहले कि वो दुनिया को बना रहा था, लेकिन इससे पहले कि उसने दुनिया को बनाया, मेरी रूह को बनाया. Now, but this hand and this body He made when He made the world, cause this body came out of the earth and going back to the earth. लेकिन अब ये हाथ और ये बदन उस वक्त बनाए जब उसने दुनिया को बनाया. यही वजह है क्योंकि ये बदन जमीन से बनाया गया और वापस जमीन को जाता है. God made that. He laid it all out in His great blueprint, His program. खुदा ने इसे ऐसा ही बनाया. उसने अपने अजीम नक्शे में इस सारे प्रोग्राम को तश्कील दिया था. Now when He went to making the earth, He made the man, and the man didn't look just right. Now we had that this morning, went through the drama, how that the father came down and looked at his son, made in his image and so forth. Then He made him a wife, a helpmate. अब जब वो जमीन को बनाने गया तो उसने इंसान को बनाया, और इंसान सही तौर पर दिखाई नहीं देता था. अब हम इसे इस सुबह सारी तस्वीर को देख चुके हैं, कैसे वो बाप नीचे आया और अपने बेटे पर नजर की. इस तरह उसने अपनी सूरत पर बनाया, फिर उसने एक मददगार यानी उसकी बीवी बनाई. Now remember that all of the creatures of the earth, Adam had named them. He had made the cattle and the beast and everything. अब याद रखें, जैसा कि जमीन की सारी मखलूक के नाम आदम ने रखे, उसने मवेशी और हैवानात और हर चीज को बनाया. And today we chronologists and different great minds of science has been trying for 6,000 years to find out that missing link. और आज हम तारीखदान और मुख्तलिफ बड़े साइंसदान 6,000 साल से कोशिश करते हैं कि इस खोई हुई कड़ी को तलाश करें. Why that man is animal life. We know that. That we're made and a woman is just a part of a man, a byproduct. क्यों इंसान की जिंदगी जानवर जैसी है?
हम इसे जानते हैं जैसा कि एक औरत सिर्फ एक आदमी का हिस्सा है जो कि एक चीज से निकाली गई जमनी है। A woman was not in the original creation. God had done quit creating for years and years and years until He made the woman out of a rib out of His side. एक औरत बुनियादी तख्लीक ना थी। खुदा सालों साल से सारी तख्लीक से फारिग हो चुका था, यहाँ तक कि उसने औरत को एक पसली से बनाया जो आदम के पहलू से बाहर निकाली गई थी। Adam done named all the creation, everything else, but he wasn't nothing for himself. आदम ने तमाम मखलूक के नाम रखे, इसके अलावा सब कुछ किया, लेकिन उसकी मानिद कोई नहीं था। So he made him a helpmate, took a rib from his side, closed up the gash and made a helpmate to him. इसी तरह खुदा ने उसकी मानिद एक मददगार बनाया, उसके पहलू से एक पसली को लेकर ऊपर गोश्त भर दिया और उसकी मानिद एक मददगार बनाया। And man in his spirit was both man and woman. And a woman is just a part of a man. And when a man takes to himself a wife, and if she's correctly his wife, a God-given wife, she'll be just to him as part of him. और आदमी की रूह में नर और नारी दोनों थे, और एक औरत एक आदमी का सिर्फ हिस्सा है। और जब एक आदमी अपने लिए एक बीवी लेता है और अगर वो दुरुस्त तौर पर उसकी बीवी है और खुदा की तरफ से दी गई है तो वाकई ही उसका हिस्सा होगी। That's the reason you have so many scruples in the marriage, is because you go out and see some girl with pretty brown eyes or blue eyes or something like that and some pretty figure and you fall for her. यही वजह है कि आप में से ज्यादातर की शादियों में शक्को शकूक होते हैं, क्योंकि आप बाहर जाते और किसी खूबसूरत ब्राउन आंखों वाली या नीली आंखों वाली लड़की को या कुछ इस तरह कोई खूबसूरत चेहरा देखते हैं तो आप इसके लिए दीवाने हो जाते हैं। First time she has her first baby, them teeth comes out and she gets wrinkled and old and then you want to kick her out. पहली घड़ी जब उसका पहला बच्चा होता और बच्चे के दांत आने तक, तब तक उसके जुड़ियां आती और वो बुढ़ी लगने लगती और तब आप चाहते हैं उसे लात मारकर बाहर कर दिया जाए। And some of you women find some little boy with his hair slicked down and his mammy's lard can half dumped on it and curly and it'll all fall out. I know that by experience. और आप औरतों में से कुछ एक जब किसी लड़के को उसके साफ मुलायम बालों के साथ देखती हैं जो नीचे तक हैं और मम्मी के सर के तेल में आधे डूबे हुए और गुंगरियाले होते हैं, और मैं अपने तजर्बे से जानता हूँ कि ये बात गिरावट का सबब बनेगी। But what happens? What is it? You fall for that? You ought to pray first. Because a woman is part of you. लेकिन क्या होता है? ये क्या है? आप इसके लिए बेताब हो जाती हैं। पहले आपको दुआ करनी है, क्योंकि एक औरत आपका हिस्सा है। And if you have embraced a woman to your bosom and taken her for your wife, and she makes an imprint on you, we'll say it like this so you'll understand. और अगर आपने एक औरत को अपनी गोश में ले लिया और उसे अपनी बीवी कबूल कर लिया और इसने अपनी छाप छोड़ी है, हम इसे इसी तरह कहेंगे ताकि इस तरह आप समझ जाएंगे। And any other woman against that bosom won't fit that print. God will hold you responsible for it. You just remember that. फिर और कोई दूसरी औरत इस छाप के लिए मौजू नहीं होगी। इसका जिम्मेदार होने के लिए खुदा आपको पकड़ेगा। आपको ठीक ठीक इसी को याद रखना है। You that take somebody else's wife out, and I heard today of a little girl here in town, a poor little thing, I know her, and some gambler buying her a big fine clothes and things and trying to play up to her like that. A rat would do a thing like that, can't even be considered a human. आप किसी और की बीवी के साथ बाहर घूमने फिरने जाते हैं, और मैंने सुना है कि आज यहाँ एक बेचारी छोटी लड़की शहर में इसके साथ एक खराब वाकया हुआ। मैं इसे जानता हूँ, और कुछ जवारियों ने इसके लिए बड़ा खूबसूरत लिबास खरीदा और दूसरी चीजें खरीदी और कोशिश की कि उसकी इज्जत के साथ खेलें। एक चूहा ही इसी तरह का काम कर सकता है। गौर करें, ऐसे शख्स को इंसान नहीं कहा जा सकता। You know a dog ain't that low down, and yet you call a mother dog a slut? She's got more morals than half the women of Jeffersonville's got. आप जानते हैं, एक कुत्ता भी इतना गिरा हुआ नहीं होता, और इसके अलावा आप कुतिया को एक छनाल पुकारते हैं। इसके पास
जेफरसनविल में रहने वाली आधी औरतों से ज्यादा इखलाक होता है। And you call an old mother hog a sow, and she's a lot more moral than the women of this United States, many of them. It's exactly right. और आप एक सूरनी को तुखम बखेरने वाली कहते हैं, और वो नहीं है। इसके पास अमेरिका की औरतों से ज्यादा इखलाक है। ये बिल्कुल ठीक बात है। Now I know that's flat, and I told you I was going to grind it home, and I want you to know it. That's true. अब मैं जानता हूँ कि ये बात बड़ी सख्त है और सीधी है, और मैंने आपको बता दिया था कि मैं इसे कहूंगा, और इसके घर तक जाना पड़ा तो जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसे जान लें, ये सच है। Oh, women nowadays don't even know what moral is. Say, don't hurt my conscience. Well, you haven't got any. Notice. Yes, sir, when you know what's right and wrong. वो तमाम नूह के दिनों की जैसी औरतें हैं, यहाँ तक कि जानती नहीं कि इखलाक क्या है। कहती हैं, हमारे ज़मीर को चोट मत पहुंचाओ। ठीक है, आप में ज़मीर है कहाँ? गौर करें। हाँ जनाब, जब आप जानते हैं कि ठीक और गलत क्या है। Now notice, this man, when he was created, God separated his spirit. And he took a piece off the man, his side, and made a woman out of it. अब गौर कीजिए, जब ये आदमी तख्लीक हुआ था, खुदा ने उसकी रूह को अलग किया और उसने उसके पहलू से एक हिस्सा निकाला और उसमें से एक औरत बनाई। And then he took the feminist, dainty spirit of the man and made a woman out of it. And he made the man masculine, burly. और उसने आदम में से नारी वाली रूह निकाल कर एक औरत बनाई। उसने आदम को मर्द और ताकतवर बनाया। And when you see a man, little, manicuring or whatever you call his fingernails, and 4 on one side and 5 on the other, and slicking his hair down to hold his mouth open in front, and such stuff as that. One of these pretty boys. और जब आप एक नौजवान को, जिसे आप जानते हैं, औरत की तरह नाखून रखते और संवारते देखें, और आप जानते हैं कि एक हाथ के 4 और दूसरी तरफ के 5 हों, और चिकने लहराते बाल जो उसके चेहरे पर आते हों, और चेहरा मोरा सुंदर से लड़कों जैसा हो, और इस तरह के जैसे वो कुछ चीज है। You just remember, sis, there's something wrong with that bird. There's something wrong. Better keep your eye on him. तो बहन, आप सिर्फ याद रखें, इसके साथ कुछ गलत है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। बेहतर है कि आप अपनी नजर उस पर रखें। And when you see a woman with a cigarette in the side of her mouth with a pair of overalls on, so I tell you, sorry, what it is? Brother, you watch that old gal. There's something wrong with her. और जब आप एक औरत को सिगरेट पीते और एक ओवरकोट पहने हुए देखें जो कहती है, मैं आपको बताऊंगी संग दिल, ये क्या है? भाई, आप इस तजर्बाकार लड़की से होशियार रहें, इसके साथ कुछ गलत है। A woman's supposed to be a woman, and she's supposed to dress like a woman. When God made a man, He made him one thing, and He made a woman something else. And when God dresses a man, He dresses him one way and a woman something else. एक औरत से उम्मीद की जाती है कि वो एक औरत है और उसे एक औरत की तरह ही लिबास पहनना है। जब खुदा ने एक आदमी बनाया तो उसने उसे एक चीज बनाया, और इसी तरह उसने एक औरत को अलग चीज बनाया। और जब खुदा ने एक आदमी को कपड़े पहनाए तो उसने एक मर्द को अलग कपड़े पहनाए, और इसी तरह औरत को अलग पहनाए। And the Bible said it's abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man. इसीलिए बाइबल कहती है, एक औरत के लिए मकरूह बात है कि वो मर्द का लिबास पहने। And you women putting on these little old pants and things and wearing them out here, little, what did you call them, knickerbocker? What is that stuff? No, it's not shorts. It's got the long legs in it. Pedal pushers and overhauls, dungarees. आप औरतें ये पुरानी मर्दाना पतलूनें और दूसरी चीजें पहनकर बाहर घूमती हैं। जरा आप इन्हें क्या कहती हैं? क्या नेकरबॉकर? वो क्या कहते हैं? ओ, वो क्या इस चीज को कहते हैं? नहीं, ये आधी पतलून नहीं है, ये एक दूसरी पतलून है। इसके पांचे लंबे होते हैं। पैडल पोशर, ओवरऑल्स, डैंगरीज। Go and say this is for the ladies. I said, no, you're mistaken. Ladies don't wear them things. Women might, but ladies don't. That's right. और आप खवातीन कहती हैं, अंदर जाएं, ये खवातीन के लिए है। मैंने कहा नहीं,
आप गलती कर चुकी हैं। खवातीन ऐसे लिबास नहीं पहनती। शायद गलत औरतें पहन सकती हैं, मगर आम खवातीन नहीं। ये दुरुस्त बात है। The Bible said it's an abomination for a woman to put on a garment, and for a man to put on a garment that pertains to a woman. बाइबल कहती है एक औरत के लिए मकरूह बात है कि वो एक मर्द का लिबास पहने, और एक मर्द के लिए मकरूह बात है कि वो एक औरत का लिबास पहने। And man is becoming more sissified every day, and women is becoming more masculine. What's the matter? We're going to find out in a few minutes by the Bible. आदमी ज्यादातर औरतों की तरह बनते जा रहे हैं, और औरतें हर रोज ज्यादातर मर्दों की तरह बनती जा रही हैं। क्या मसला है? हम कुछ ही मिनटों में बाइबल के वसीला इस बात को हासिल करने जा रहे हैं। Women ain't women no more. I don't mean you Christian women. I'm talking about the general run. औरतें अब मजीद औरतें नहीं रही। मेरा यह मतलब नहीं कि अब मसीही औरतें। मैं आम दौड़ने वालियों के बारे में बात कर रहा हूँ। They want to act like man, want to cut their hair like man, put their hand up on a bar like that and saying God bless America with a cigarette out of the corner of their mouth. वो बिल्कुल आदमियों की मानिद अमल करने लगी हैं। बिल्कुल आदमियों की तरह वो अपने बाल कटाने लगी हैं। उन्होंने अपने हाथ एक शराब खाने पर रखे होते हैं, और बिल्कुल इसी तरह सिगरेट अपने मुंह से लगाई होती है, और गाती हैं खुदा अमेरिका को बरकत दे। Go down the street, back out like that, riding the highway. We counted. I want to tell you something, and you women drivers, listen. ठीक रास्ते में, गलियों में, और इसी तरह से बाहर सड़क के किनारे जाएं। हमने गिना है। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ चीजें बताऊं, और आप ड्राइवर औरतें सुने। Billy Paul and I, on this last campaign around the nation, 6 months, I kept account of how many scruples on the road. And out of 300 mishaps on the road, guess how many of them was women drivers? बिली पॉल और मैं 6 महीनों में इस मुहिम में जो कौम के चौगिर्द थी घूमे हैं। मैंने इनका शुमार रखा है कि सड़क पर कितने लोग ऐसे हैं जो ज़मीर को ठेस पहुंचाते हैं, और 300 हादसात सड़क के ऊपर हुए। अंदाजा लगाएं वहाँ कितनी ड्राइवर औरतें थीं। There was only like 19 of them were men, and 280, or at least 281 of them would be women drivers. Women drivers. सिर्फ 19 उनमें से मर्द थे, और 280 या मेरा ख्याल है 281 फिर ये ड्राइवर औरतें ही थी। ड्राइवर औरतों। I'm not saying they ain't good women drivers, but she'll turn anyway. अब मैं ये नहीं कहता कि वहाँ अच्छी ड्राइवर खवातीन नहीं हैं, मगर ये कहीं भी घूम जाएंगी। And you just try to get back at her. Let her be kind of nice looking, stand there, push out a hair up when a cop comes up. Why do you say, sure, you're in the wrong? और उनकी गलती पर आप उन्हें बताने की कोशिश करें तो क्या होता है? अगर वो एक किस्म की खूबसूरत दिखाई देने वाली खातून हो तो पुलिस को देखकर अपने बालों को ऊपर धकेलेगी। क्यों? फिर क्या होगा? पुलिस वाला सिर्फ इतना ही कहेगा, यकीनन आप गलती पर हैं। We ain't got no law. They proved that the other day in a tax suit just coming through. मगर उन्हें ठीक करने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। किसी रोज मैं टैक्स के मुकदमे से वापस आ रहा था, और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। We ain't got no laws. If they are, no wonder that great lords of England said that democracy was all sails, no anchor. That's right. हमारे पास कानून नाम की कोई चीज नहीं है। अगर यहाँ कोई हैरत नहीं कि इंग्लैंड के ग्रेट लॉर्ड ने कहा, जमहूरियत पूरे समंदर में बहने का नाम है, और वो भी बगैर लंगर के। ये दुरुस्त है। Stand on the soapbox electioneering, democracy is rotten, and so is dictators and all the rest of the whole thing is rotten. ऐसे लोग अपने आप को ठीक दिखाकर इलेक्शन लड़ते हैं। जमहूरियत सड़ी हुई है, और इसी तरह डिक्टेटर और बाकी तमाम भी गल सड़ चुके हैं। सारी चीजें गली सड़ी हैं। And but one thing for God to do is destroy the whole thing as He said He would do and start anew. Watch how close you are at the coming. कुछ नहीं करना है, लेकिन एक काम जो खुदा को करना है, तमाम चीजों को तबाह करना है, जैसा कि उसने कहा वो करेगा, और नए सिरे से बनाएगा। अब ध्यान करें आप आमद के कितने नजदीक हैं। Now, when this woman, He made him a helpmate, and she was to be His helpmate. और अब इस औरत को उसने एक मददगार बनाया, और उसे आदम का मददगार होना था। And then
Now here I've never had a preacher to agree with this yet, and they try to make it some other way, but yet it don't make sense to me. और फिर अब यहाँ मेरे साथ एक भी मनाद इस बात पर मुत्फिक नहीं है, और वो कोशिश करते हैं कि इसे किसी तरीके से समझें, लेकिन उनकी बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। They try to say that Adam and Eve eat some apples. Brother, if I don't say this for a joke now, but I want to say it for if eating apples make women realize they're naked, we better pass the apples again. You know that's right. वो कहने की कोशिश करते हैं कि आदम और हवा ने कुछ सेब खाए। भाई, अब मैं ये बात एक मजाक के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं इस नियत से कि अगर सेब खाने से औरत ने महसूस किया कि वो नंगे थे, तो इससे अच्छा है कि हम सेबों की तरफ दोबारा बढ़ें, और आप जानते हैं ये दुरुस्त है। You know, eating an apple, that wasn't what they did. Made them realize they were naked. Certainly it was. It had to come to sexually. It had to be because they realized they were naked when they'd taken this forbidden fruit. आप जानते हैं, एक सेब खाने से ऐसा नहीं था जो उन्होंने किया। यकीनी तौर पर ऐसा नहीं था। वो इस मानिद हो गए कि उन्होंने महसूस किया कि वो नंगे थे। ये जिनसी तौर पर हुआ था, और ऐसा ही हुआ था इस वजह से कि जब उन्होंने इस ममनुआ फल को लिया तो उन्होंने महसूस किया कि वो नंगे थे। Ain't a woman a fruit tree? Aren't you the fruit of your mother? That was the fruit that was forbidden to be taken. क्या एक औरत एक फलदार दरख्त नहीं है? क्या आप अपनी माँ के फल नहीं हैं? यही वो फल था जिसको लेने को मना किया गया था। Now here's the great thing. Now the closest the science has ever got to knowing what the human being was, they dig up old bones, they take fossils, and they take heads, and they take skulls and arms and bones and try to make it look like a human being. अब यहाँ बड़ी अहम बात है। अब साइंस यहाँ इस इल्म को पाने में इंतहाई करीब पहुंच चुकी है कि बनीनो इंसान क्या था। उन्होंने गड्ढे खोदे और जानवरों की पुरानी हड्डियां निकाली, उन्होंने कदीम एशिया निकाली, और उन्होंने खोपड़ियां निकाली, और उन्होंने खोपड़ियां और बाजू और हड्डियां ली, और कोशिश की कि समझें कि ये एक बनीनो इंसान की तरह नजर आता है कि नहीं। And they know that the closest thing they've ever come to find the human next to it is a chimpanzee. और वो जानते हैं कि ये चीज बहुत नजदीक है। तब से उन्होंने तलाश किया कि सबसे करीबी चीज जो इंसान से मिलती है वो एक चिंपैंजी है। He's the closest species to a human being. But yet it isn't nothing with the human being. The lowest form of life that there is a frog. The highest form is a human being. ये बनीनो इंसान के करीब तर किस्म है, लेकिन इंसान जो बुलंद तरीन मखलूक है, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ जिंदगी की जो अदना किस्म है एक मेंढक है, और आला किस्म बनीनो इंसान है। God started at the bottom and made right up till he brought it plumb to his image. Brought it through the birds and the beasts and on up till he got to the image of God. खुदा ने बुनियाद से इब्तदा की और ठीक ऊपर तक बनाया, यहाँ तक कि इंसान को उसने अपनी सूरत पर लाया। उसने परिंदों और हैवानों को बनाया, और सबसे बुलंद यहाँ तक कि उसने इंसान को खुदा की सूरत दी। He made man in that image. That's the highest form. The lowest form is just a pollywog that turned into a frog and so forth. उसने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, जो कि आला तरीन किस्म है, और इसी तरह अदना किस्म सिर्फ एक मेंढक के बच्चे की तरह है, जो कि एक मेंढक में तब्दील हो जाता है। Now, this missing link that they can't find. What's the scripture? Now, you're going to disagree with this, many of you, but I just want you to bear it in mind and don't be prejudiced against it. Listen. अब ये खोई हुई कड़ी है जो कि वो नहीं पा सकते। अब कलामे मुकद्दस पर ध्यान दीजिए। आप में से ज्यादातर इसके साथ मुत्फिक नहीं होते, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप इसे ज़हन में बिठाएं और पहले ही इसके खिलाफ फैसला ना दें। सुनिए, I know many of you just been listening to Dr. Dehan. Certainly is a man of his caliber and a good Baptist brother, and I certainly appreciate him. He's got more intelligence and brains and forgot more than I'd ever know. मैं जानता हूं आप में से बतेरे डॉक्टर डीहान को सुनते रहे हैं। मैं यकीनी तौर पर इन जैसे सलाहियत रखने वाले आदमी को, जो एक अच्छा बैप्टिस्ट भाई है, मैं उनकी यकीनी तौर पर हौसला अफजाई करता हूं।
वो बहुत ज़हीन और अच्छे दिमाग का मालिक है और मुझे याद नहीं कि किसी और में ऐसी सलाहियत हो। Because he's a doctor of divinity, and he's a medical doctor, and he's a doctor of science. He's a smart man. क्योंकि वो इलाहियात का एक डॉक्टर है, वो एक मेडिकल डॉक्टर है और वो साइंस का भी एक डॉक्टर है, वो एक ज़हीन आदमी है। But he's saying that those, when the sons of God saw the daughters of man were fair, he takes Josephus' stand and say that they press themselves into human flesh and taken unto them wives. लेकिन वो जोसेफिस नजरिए के साथ खड़ा होता है और कहता है कि जब खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत थी, तो उन्होंने अपने आप को इंसानी बदन में हमवार किया और उन्हें बीवियों के लिए लिया। And there were giants in the land of Nod, and they taken themselves wives and lived with them. When the sons of God, fallen angels, taken and seen the daughters of man, and the sex desire was such a great thing, and yet them being sinful for fallen, they pressed themselves into human flesh. और नूद की सरजमीन में जबार थे और उन्होंने अपनी बीवियां ली और उनके साथ रहते। तब खुदा के बेटे गिराए गए फरिश्तों ने इंसान की बेटियों को देखा और लिया, और गिराए गए फरिश्ते खुदा के बेटे थे और उन्होंने इंसान की बेटियों को ले लिया और जिनसी ख्वाहिश उनके अंदर थी और वो उनके साथ रहने लगे और अपने आप को इंसानी बदन में डाल लिया। If they do that, they spoil divine healing, they spoil everything else. If the devil can create, he's equal with God. The devil cannot create. अगर वो ये करते हैं तो इलाही शिफा को बिगाड़ते हैं। उन्होंने इसके अलावा भी सब कुछ खराब किया। अगर शैतान तख्लीक कर सकता है तो वो खुदा के मुसावी है। शैतान तख्लीक नहीं कर सकता। I want you to show me one place where the devil can create. He cannot create. He only perverts what has been created. He is no creator. He is only a perverter. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई एक जगह भी दिखाएं जहाँ शैतान ने तख्लीक किया। वो तख्लीक नहीं कर सकता। जो पहले ही तख्लीक हो चुका है वो सिर्फ उसे गलत रास्ते पर डालता है। वो खालिक नहीं है, वो सिर्फ एक गलत रास्ते पर डालने वाला है। Well, then what happened? Here's my version. Here's the missing link. ठीक है, तब क्या हुआ था? ध्यान दीजिए, यहाँ मेरा मतलब है, यही है, यहाँ खोई हुई कड़ी है। Now they got a chimpanzee, but you can't breed a chimpanzee with a woman and bring forth a child. You can't breed a human being with any animal. It won't mix. You can't blood transfuse any animal. अब उन्होंने एक चिंपैंजी को लिया, लेकिन आप एक चिंपैंजी की एक औरत के साथ नस्ल नहीं बढ़ा सकते हैं और ना ही एक बच्चे को पैदा कर सकते हैं। आप इंसान की किसी भी जानवर के साथ नस्ल नहीं बढ़ा सकते। ये मखलूत नहीं होगी। किसी भी जानवर में आप खून को मुंतकिल नहीं कर सकते। When I was in Africa, they treat those poor colored people there in such a way. Someone said to me, they're nothing but animals. I said, I beg your pardon. They're just as much human as you are. Maybe a little more. जब मैं अफ्रीका में था, किसी ने मुझसे कहा कि यहाँ हमारे लोगों का इलाज ऐसे करते हैं जैसे कि जानवरों का। मैंने कहा, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, वो वैसे ही इंसान हैं जैसे कि आप हैं। हो सकता है आप थोड़ा ज्यादा अच्छे हों। Let me tell you, when you got that kind of an attitude, you're getting back towards an animal. मुझे आपको बताने दें, जब आपने इस किस्म के एक रवैये को पाया तो आप वापिस एक जानवर की तरह बढ़ रहे हैं। I said, that man, if he's as black as the ace of spades, or if he's as yellow as a pumpkin, or if he's as blue as indigo, he might save your life by giving you a blood transfusion. But don't you never put an animal's blood in you. Certainly, he's a human. मैंने कहा, अगर वो आदमी, चाहे वो काला है जैसे हुक्म का इक्का, या अगर वो पीला है जैसे एक कद्दू, या अगर वो नीला है जैसे बेल, हो सकता है कि वो आपकी जिंदगी उस खून से बचाए जो वो आप में मुंतकिली के जरिए देगा। लेकिन आप कभी भी एक जानवर का खून अपने में नहीं लगा सकते, यकीनी तौर पर, लेकिन वो एक इंसान है। Just because one skin was black and the other brown and the other yellow and the other white, that has nothing to do with it. The Bible said God of one blood made all man. And that's exactly right. क्योंकि किसी एक की
चमड़ी काली और दूसरे की ब्राउन और पीली और सफेद है। ये बेकार की बात है, इससे कुछ नहीं होता। बाइबल कहती है खुदा ने एक ही खून से तमाम इंसानों को बनाया, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। The places we lived in, changing our colors, had nothing to do with it. God made it one man, all nations, one blood, all nations the same. हम जिन जगहों में रहते हैं ये हमारे रंगों को तब्दील करती हैं, इसके साथ कुछ नहीं होता है। खुदा ने तमाम कौमों में एक जैसे इंसान बनाए और तमाम कौमों में एक जैसा ही खून रखा। The Chinese, the colored man can't say now, the black man can't say now, that Chinese, he's yellow, I ain't gonna have nothing to do with him. He's your brother. चीनी लोग को कोई भी आदमी आज ये नहीं कह सकता कि मुझे पीली चमड़ी वाले से काम नहीं, मेरा इसके साथ कोई लेन देन नहीं। वो चाइना का आदमी है, वो जर्द है, मेरा इसके साथ कोई लेन देन नहीं, मगर वो आपका भाई है। And you white men can't say to the yellow man or the black man, either one, I have nothing to do with you, he's your brother. Exactly right. और आप सफेद रंग वाले इंसान को, जर्द रंग वाले इंसान को, या स्याह रंग वाले इंसान या किसी को भी ये नहीं कह सकते मेरा आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो आपका भाई है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। Notice, now here's what's taking place. I believe and can support it by the Bible that it is the serpent that did it. The serpent is that missing person between the chimpanzee and the man. अब गौर कीजिए, जो वहां हुआ था, मैं ईमान रखता हूं और इसकी बाइबल के वसीला वजाहत कर सकता हूं। ये वही सांप है जिसने ऐसा किया, और सांप ही वो शख्सियत है जो इंसान और चिंपैंजी के दरमियान खोई हुई कड़ी है। Because listen, notice this now, that the serpent was not a reptile. He was most subtle of all the beasts of the field. वजह सुनिए, अब इस पर तवज्जो दें। जैसा कि सांप एक रेंगने वाला जानवर नहीं था, वो कुल दश्ती जानवरों में से ज्यादा चालाक था। Now I went and got dictionaries today from everywhere to look up this word, what the word of subtle meant. It means to be smart, to be crafty. अब आज मैंने हर तरफ से काफी लुगात हासिल की और इस लफ्ज के ऊपर देखा। लफ्ज चालाक का मतलब क्या है? इसका मतलब है होशियार होना, फरेबी होना। And the best interpretation of the Hebrew from M-A-H-A-H, Maha, means having a true knowledge of the principles of life. और अब्रानी के लफ्ज MAHAH की बेहतरीन तशरीह है, और माह जिसका मतलब है जिंदगी के असूलों का हकीकी इल्म रखना। Now let's watch this just a minute. He's smart, crafty, yet he's called the serpent, but remember, he was the smartest thing there was, and the more like the human being than anything else that was on the field. Supposed to see a human being. अब आइए सिर्फ एक मिनट के लिए इस पर ध्यान दें। वो होशियार और फरेबी था और अभी तक सांप कहलाता है, लेकिन याद रखें वो इन चीजों में जो वहां थी सबसे होशियार था, और किसी भी चीज से जो वहां थी बहुत ज्यादा इंसान की मानिद लगता था और एक इंसान के बहुत ही करीब था। He was not a reptile. The curse made him a reptile. And he was, the Bible said he was the most beautiful of all. वो एक रेंगने वाला जानवर नहीं था, लानत के सबब वो एक रेंगने वाला बना, और बाइबल फरमाती है वो इन तमाम जानवरों में सबसे ज्यादा खूबसूरत था। And even the curse didn't take all his beauty away. Yet the glorious colors of a snake is beautiful. And his grace and his shrewdness. Even the curse didn't move at all. और यहाँ तक कि लानत ने भी उसकी सारी खूबसूरती को दूर नहीं किया। अभी तक एक सांप की खूबसूरती, उसका शानदार रंग, उसकी दिलकशी और उसकी अयारी है, यहाँ तक कि लानत उसे मटा ना सकी। But remember, God told him that his legs would come off and he'd go on his belly. And you can't find one bone in a snake that looks like a human being, and that's the reason science is lost. But there he is. मगर आप याद रखें,
खुदा ने उसे बताया कि तेरी टांगे खत्म हो जाएंगी और तू पेट के बल चलेगा और आप एक हड्डी भी सामने नहीं पा सकते जो इंसान की मानित नजर आए। और यही वजह है कि साइंस खोई हुई कड़ी को खो चुकी है, लेकिन वो यहाँ है। God hid it from the eyes of the wise and prudent and promised to reveal it to the sons of God in the last days when the sons of God will be made manifest. और खुदा ने इसे अक्लमंदों और दानाओं की आंखों से छुपाए रखा और वादा किया कि उसे खुदा के बेटों पर आखिरी दिनों में जब खुदा के बेटे जाहिर होंगे उन पर जाहिर करता है। When God's sons that rejoiced in before the foundation of the world, when the great revelation of the Godhead and things would be brought down in the last days, He would manifest these things through the sons of God. जब खुदा के बेटे जो यहाँ तक बनाए आलम से पेशतर शादमानी करते थे, अब खुदा अजीम मुकाशफा और बातें इन आखिरी दिनों में लाएगा और इन तमाम बातों को खुदा के बेटों के जरिए अयां करेगा। You know the Scripture teaches that, and here we are. That's the reason God's opening these things to us. God is bringing His sons into manifestation. आप जानते हैं कि कलाम मुकद्दस सिखाता है और हम यहाँ हैं। यही वजह है कि खुदा इन बातों को हम पर खोल रहा है। खुदा अपने बेटों को जाहिर करके उनमें ला रहा है। He's going beyond the limitations of any human knowledge, way into the spiritual revelations and bring it down. वो इनको किसी भी इंसानी इल्म की हदबंदी से दूसरी तरफ ले जा रहा है। इस राह में रूहानी मुकाशफात जाहिर करता और उनको देता है। Have we been teaching in this Bible? Here's to him that has wisdom. Not what he learned in some seminary, but what he learned on his knees before God and what pleased God to give him. Sons of God made manifest. क्या हमने इसे बाइबल में नहीं सीखा? या उसको होना है जो हिकमत रखता है। ये नहीं कि उसने किसी सेमिनरी में सीखा है, बल्कि उसने खुदा के सामने अपने घुटनों के बल होकर सीखा और खुदा उसको खुश होकर देता है। खुदा के बेटे जाहिर हो रहे हैं। Here's the serpent. Now here's what the serpent was. I'm going to give you my description of him. इस सांप को देखें जो अब यहाँ था। मैं आपको इसके मुतालिक बताने जा रहा हूँ। We come down from the frog on to that, the pollywog, and on down and on and so on. So you finally come to the monkey, to the chimpanzee, and from the chimpanzee, now we jump from the chimpanzee to the human, and we wonder why. हम नीचे एक मेंढक की तरफ, मेंढक के बच्चे की तरफ आते हैं और ऊपर से नीचे तक, और इसी तरह यहाँ तक के हतमी तौर पर बंदर पर आते हैं, यानी चिंपैंजी की जानिब, और चिंपैंजी की तरफ से अब हम छलांग लगाते हुए इंसान की जानिब आते हैं और हम हैरान होते हैं कि ये सच में क्या था। Well, science says, now wait, we can breed the woman to the monkey, to the chimpanzee, to the vice versa, a man breed to the chimpanzee. It won't work. ठीक है, साइंस कहती है अब इंतजार करें, हम औरत की नस्ल को बंदर और चिंपैंजी से बढ़ा सकते हैं। इसके बरक्स हम एक इंसान से चिंपैंजी की नस्ल बढ़ा सकते हैं। ये नस्ल नहीं बढ़ा सकेंगे। Breed it to any other animal, won't work. Blood won't mix, take their blood, that's altogether different blood altogether. ये किसी जानवर से नस्ल बढ़ाने की कोशिश करें तो भी ऐसा काम नहीं होगा। खून मिक्स नहीं होगा। अपना खून लें और उन्हें इकट्ठा करें, आपका लहू तमाम तर से मुख्तलिफ है। There's some blood between here and they can't find the animal. Oh, hallelujah. I'm getting to feel religious right now. Notice. Why? God hid it from him. यहाँ बीच में कुछ खून है और वो जानवर का खून तलाश नहीं कर सकते। हो हालेलुया। अब मैं ठीक खुदा में महसूस कर रहा हूँ। गौर कीजिए क्यों खुदा ने इसे इनसे छुपाया। There ain't a bone in a snake that looks like a human bone. He put the thing so far away that it couldn't be discovered by a smart man. एक सांप में कोई हड्डी नहीं है जो कि बिल्कुल इंसान की तरह नजर आए। उसने इस तरह इस चीज को दूर कर दिया कि ज़हीन आदमी भी इसे दरियाफ्त नहीं कर सके। Now I'm going to show you where that smart man comes from, where he's at anyhow. See, he can't come through that. और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि वो ज़हीन आदमी कहाँ से आता है और वो इस वक्त कहाँ पर है। समझे, वो इसके जरिए नहीं आ सकता। It's got to come by revelation. Thou the Christ the Son, upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Spiritual revelation. ये बात मुकाशवा के जरिए समझ आती है। तू खुदा का बेटा मसीह है। मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे इस पर गालिब नहीं आ सकते। यही रूहानी मुकाशवा है। How did
know. To offer a lamb instead of Cain offering the fruits of the field. It was spiritually revealed to him. कैसे काइन के खेत के फलों के हदिये की बजाय हाबल ने एक बरे की कुर्बानी को जाना, ये रूहानी मुकाशफा उस पर जाहिर हुआ था। You don't get it by seminaries, you don't get it through denominations, you get it from heaven. आप इसे सेमिनरी के जरिए हासिल नहीं कर सकते, आप इसे तंजीमों के जरिए हासिल नहीं कर सकते, आप इसे आसमान की तरफ से पाते हैं। Now, what's the serpent? This serpent, which was first, let's draw a picture of him now. He's a great big fellow. He's between the chimpanzee and the man. अब सांप पर ध्यान करें। ये सांप पहले क्या था? अब उसकी एक तस्वीर कशी करते हैं। वो एक बड़ा लंबा चौड़ा आदमी था। वो इंसान और चिंपैंजी के दरमियान था।